Jai Sri Ram, everybody. Welcome to Bharat Marg Weekend Discussion. Okay, first I will start with Seema ji. सीमा जी, ये जो कश्मीर फाइल्स है मूवी, बहुत चल रहा है. लोग बोलते हैं कि 150 crore, आई थिंक इट लुक्स लाइक 250 crores. It has nothing to do with us how much it is good the producers are making money. But my question is simple. You saw the Kashmir Files movie. I know that you are mobilizing people in Europe everywhere, from Germany. A lot of people are talking about your work of taking people to theater for the Kashmir Files. So Seema ji is doing an incredible job in Europe. Okay, and I want to salute her for that. Okay, but I want to ask you a question, Seemaji, quickly. Okay, what today's Hindu can learn from this 30-year-old story? Is it still relevant? Please go ahead. मैंने तो हॉल में भी फिल्म देखने के बाद यही बोला था कि सिर्फ फिल्म देखकर मत जाइए, ये फिल्म नहीं है, ये एक मैसेज है आप लोगों को कि अगर ऐसे ही रोते रहोगे ना तो ऐसे पेड़ों पे चिपकाए जाते रहोगे. क्योंकि मैंने तो जब से होश संभाला है यही देखा है, कभी पंजाब में, कभी कहीं सनातनियों के साथ यही हो रहा है. ठीक है, और लर्न क्या हमारी कम्युनिटी को करना चाहिए, रोकर भागो मत. तुम लोगों के भी वही राइट्स हैं जो बाकियों के हैं. तुम लोगों को अपने को बचाने के राइट्स हैं. अगर अगला एक बंदूक लेकर आता है तो तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, 4, 5, 6, तो तुम लोग भी कर सकते हो ना. तुम लोग भी काउंटर कर सकते हो. उनको हर तरीके से काउंटर करना पड़ेगा, इनको कोर्ट कचहरियों में, इनके टेररिज्म को, और इनके ही स्टाइल में, इनकी जैसी भाषा. अगर ये गंदी, कड़वी और धमकियों वाली भाषा बोलेंगे वैसे ही काउंटर करो. इनको सेम इनके स्टाइल में जब तक काउंटर करना नहीं सीखोगे ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है. मुझे शर्म आती है जब मेरी कम्युनिटी रो रो कर बाहर निकलती है. मैंने उनको बोला रो क्यों रहे हो, लर्न करके जाओ, रोकर आंसू बहाकर बेचारे मत बनो. मुझे शर्म आती है आप लोगों को रोते हुए देखकर. यही मैम वाह, कहना चाहती हूँ. विनय जी, धन्यवाद. विनय जी, सीमा जी बोलते हैं मोदी मोदी मत चिल्लाओ, तुम अपने आप को बंदोबस्त करो. आप क्या बोलेंगे इस मूवी से? व्हाट डू यू लर्न, और व्हाट डू यू थिंक हिंदूस आर लर्निंग? Namaste ji. Yeah. So this movie just it's absolutely amazing. Like the way it was done, the way the sequence of events, the chronological sequence of events was shown, and showing the way the Hindus were persecuted in Kashmir. It's actually a reality that can happen today. It can happen today, and we are seeing it happening in many parts of India, and the Hindus are keeping quiet. And somebody was saying that there will be a movie very soon about Kerala Files, and maybe another few years, a whole movie about India Files. We don't want that. We don't want to get to that. And our people will be coming out crying like Seemaji says. Exactly. I mean, like, if you tie your hands and if you keep quiet, and if we don't unite together, if the Hindus don't unite together and do something about it, then this is going to become a reality like for Kerala Files, India Files, and whatever. So we got to stop this. We got to stop this because this is like stuff that is happening, for what? For something that happened 32 years ago has been now made into a movie, and people are watching. And still, the people who are, the Congress party and all of them, they're saying this is a propaganda film. How is that true? That this is a reality that has happened. Absolutely. Like, we just have to stop. If you don't change, we will be part of the files. Says Exactly. Yeah. Exactly. What will you say, प्रीति जी? ये जो कश्मीरी फाइल्स एक मूवी जो है, वो वैसे तो मेरे हिसाब से ये तो कोई मूवी है नहीं, ये तो एक सीधी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें सिर्फ सत्य हकीकतें बताई गई हैं. और इसमें कोई भी एक डायलॉग भी ऐसा नहीं है जो हकीकत में किसी हिंदू ने या कश्मीरी पंडित ने नहीं बोला है. मतलब वो इट इज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म फर्स्ट ऑफ ऑल.
और इससे हमें क्या सीखना है एज ए हिंदू, हमें क्या सीखना है? तो मैं ये बता दूं कि हम हिंदू जाति के तौर पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात हमें जरूर याद रखनी है कि हर हिंदू में या हर व्यक्ति में एक क्षत्रियत्व का होना बहुत जरूरी है, और वो होता भी है। लेकिन हमें वो अहिंसा की गुट्टी जो पिलाई गई है बहुत सालों तक, उससे वो क्षत्रियत्व हमारा सो चुका है, उसको जगाना है, और हमारे क्षत्रियत्व को जगा के उसको यूज भी करना है। सिर्फ जगाने से कुछ नहीं होगा। और एक बात दूसरी हमें याद रखनी है कि तलवारों को सिर्फ तलवारें काट सकती है। अगर कोई आपके ऊपर तलवार चलाता है तो आपको भी तलवार चलानी पड़ेगी, और आप ये बिल्कुल हरगिज नहीं कह सकते कि ये कोई हिंसा नहीं है। अगर अपनी रक्षा के लिए मैं तलवार चलाती हूँ तो वो हिंसा नहीं है, वो सेल्फ डिफेंस है, और मुझे और अपनी जनरेशंस को सेल्फ डिफेंस के लिए महात्मा गांधी का देश से आके अब क्या बोलते हैं आप? अरे मैं वही बोल रही हूँ जो सत्य है। अरे कपड़े करो, कपड़े बनाओ प्रीति जी। कोई कपड़े वपड़े क्या बात बनाएंगे, और तलवारें हमें अपनी स्वरक्षा के लिए रखनी पड़ेंगी, और हम रखेंगे भी, क्योंकि अगर हमने वो नहीं किया तो कल को सारे हिंदुओं को या तो कट के मुल्ले हो जाना है, या फिर हमें नरेंद्र। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगी नरेंद्र भाई, जस्ट वेट, वी विल कम दिस राउंड। जस्ट वन लास्ट थिंग आई वांट टू से, कि मैं ये कहूंगी कि हे कश्मीरी पंडित, हम शर्मिंदा है कि तेरे कातिल अभी तक जिंदा है। वो लोग जब कहते थे ना, तो हम शर्मिंदा है, और हमें अपनी इस शर्म को बिल्कुल आगे नहीं रखना है। शर्म को तोड़ के सही न्याय दिलवाना है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ वी आर गोइंग टू सतीश जी। सतीश जी, आई वाज रीडिंग, when you forget your history, you lose your geography. Very apt, isn't it? Hariom. You are exactly on the point, because there is another one attached. When people tell those who don't learn from history are condemned to repeat it. So when people talk about Kashmir, the lost land of the Pandits of the Kashmir, I had been very closely associated in those days with the Sangha as much as I am today. And in those days, when I was in my college, I remember I led an Andolan, or a strike at the college, as I was the organizing secretary of ABVP in the January 1990. And it was very sad in the western side of Tamil Nadu, in a city like Coimbatore, which always had a very strong Hindutva and nationalist feelings. In those days, it was like people have to be told what is... you say me what Hindus of today can learn. Yeah, exactly, I'm coming there. So in those days, I remember it was like, why is it that we are fighting for the Hindus of India? That was the sad story in those days. Today, after I should share my experience of seeing this movie along with my other course YM Sevaks, it was not about crying or moaning or anything of that sort. It was nothing short of biting the teeth to that extent that, look, this kind of genocide, if it has happened during our lifetime, it's a damn shame. It's a damn shame. Can we see this kind of a genocide happening for the Christians in America or the Muslims in any of the 57 Islamic nations? No, it wasn't. So it was very sad, and there was the army, there was the paramilitary forces, everyone was there. In spite of which, lakhs of people were displaced in their own country. And as Preeti ji and Vinay ji were earlier correctly telling, if we don't learn from the Kashmir files, then every state will become a file like this. I only wish that Jai Parashuram has to be the Nara for the way forward, and we need to learn from this the darkest chapter of our times of Indian history. Absolutely. So, I am very keen
whatever it needs to take, it's not just about building Ram Mandir or Krishna Mandir in Mathura. We should now build Sharda Mandir in Srinagar, and just the 3 districts. And we as have to they get are. our Sarda Mandir from POK back, you know. Exactly. Yeah, and Exactly. let's move on to. देखिए, पहले तो सबको जय श्री राम। मैं इस मूवी से जो शिक्षा लोगों को लेनी चाहिए, जो समझ आनी चाहिए लोगों को, जो हमारे हिंदू भाई हैं और जो भी जितने भी सनातनी हैं, उन सबको ये समझ आनी चाहिए। पहली बात तो मैं आपके चैनल से ये बताऊंगा कि ये जो मुसलमान है, ये किसी भी घड़े के ढक्कन नहीं है, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जो इन्होंने सुधीर भाई रुको जरा, सुधीर भाई जरा रुकिए, ओके। क्या? यूएन बोलती है कि इस्लामाफोबिया मत करो, उन विचारों को आप गाली मत दो, आप तो क्या करें? खुला खुला बात करते हैं। यूएन बोलती है उनके गले में ये डालेंगे, उनके गले में हम छत्रों के हाथ डालेंगे, जिन्होंने हमारे पंडित भाइयों को, पंडित कश्मीरियों को वहां से निकाला, मार मार के हमारी बहू बहनों की इज्जत लूटी। क्या कुछ नहीं उन्होंने कर दिया। जो इस मूवी में दिखाया गया एकदम सच्चाई दिखाई गई है, उसमें कुछ ऐसा नहीं डाला गया मसाला कि पिक्चर को हिट करने के लिए कुछ डाला हो। कल मैं जब परसों संडे को पिक्चर देखने हम लोग गए, प्रशासन ने, मैं नहीं जा सकता लेकिन प्रशासन का मैं थैंक्स करता हूँ, पुलिस प्रशासन का, उन्होंने डीसीपी साहब को मेरे साथ भेजा पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए। हम 50 लोग थे, लेकिन जब मूवी स्टार्ट होती है तो वहां पे राष्ट्रगान शुरू होता है हमारे यहाँ पे, तो राष्ट्रगान शुरू होता है तो सब लोग खड़े होकर उसको सल्यूट करते हैं। लेकिन वहां पर भी कुछ लोग गरदार बैठे हुए थे, जैसे एक पगड़ीधारी और उसकी वाइफ थी, उन्होंने खड़े होकर सल्यूट करने की जरूरत नहीं समझी। सब लोग हॉल में खड़े थे, सब लोगों ने सल्यूट किया, बच्चों ने भी किया, लेकिन वो एक फैमिली थी जो खड़ी थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे, जब मूवी में वो 24 लोगों को मारा जाता है 1 बाय 1 करके, तो वो बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। जब उनको डांटा गया कि कल को तुम्हारे परिवार के साथ भी ऐसा होगा, तो उन्होंने थिएटर से बाहर भागने की कोशिश की और भाग भी गए। वो ये पिक्चर नहीं है, ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। जो आने वाली एक तूफान आने वाला, सुनामी आने वाला है, जो भी अभी इसके बाद पंजाब की बारी है, जो हम लोग नहीं जाग रहे, सनातनी एक नहीं हो रहे, यही होगा। अभी अगली मूवी आएगी पंजाब फाइल पे, आप और हम नहीं होंगे देखने के लिए, लेकिन हमारे बच्चे होंगे देखने के लिए, लेकिन वो दूसरी स्टेट में जाके देखेंगे। जिस तरह हमारे कश्मीरी पंडित दिल्ली में जाके या पंजाब में आके या जम्मू राजस्थान में या एमपी में कहीं भी जाके देख रहे हैं, वहां से उनको भगा दिया गया। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग सकते। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूंगा सब हिंदुओं को कि एकदम से, अगर वो जैसे सीमा जी ने बोला तो कि अगर वो आते हैं, वो 10 की तादाद में है या 1 की तादाद में, आप घर में 20 लोग पकड़ लो उनको, क्या हो जाएगा? मरना तो ही नहीं, पकड़ोगे तो भी मरोगे, अगर पकड़ लोगे तो उनको मारोगे। इसलिए भाइयों, भागो मत, इनको भगाओ, मरो मत, इनको मारो, यही एक नारा होना चाहिए और तभी हमारा सनातन धर्म बच सकता है। वरना ये अजगर का मुंह लेके बैठे हुए हैं, ये हम सबको निकल जाएंगे। ओके, ग्रेट, ओके। नरेंद्र भाई, आप क्या बोलेंगे? नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा इसमें मानना ये है कि जितना जिम्मेवार मुसलमान है इसके लिए हिंदुस्तान का और सरकार, उससे ज्यादा जिम्मेवार हिंदुस्तान का हिंदू है। हिंदुओं ने उन्हें पंडितों को अपना समझा होता तो क्या सारे हिंदुस्तान में इसकी डिमांड नहीं हो सकती थी, इंक्वायरी की, उनकी प्रोटेक्शन की। हिंदुस्तान में आपने सुना कभी मूवमेंट हुई उनके लिए? हिंदुस्तान में कोई आंदोलन हुआ हो, किसी राजनीतिक पार्टी ने उनकी रिहेबिलिटेशन या उन पे केस ओपन करने के लिए और सजा दिलवाने के लिए कोई बड़ा एजिटेशन किया हो, किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने किया हो? नहीं किया। सो ये जो मूवी बनी है अभी, ये मूवी देखिए सबसे कम बजट की मूवी है। कोई हीरो नहीं, कोई हीरोइन नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई कॉमेडी नहीं, कोई सॉन्ग नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। ये मूवी लोग हिट कर रहे हैं, ये एक अच्छा लक्षण है।
इसका मतलब है सारा हिंदू समाज पूरे इंडिया में अब जुड़ रहा है और कंसर्न हो रहा है। अब ये पहले क्यों नहीं था? पहले इसलिए नहीं था कि इस मैटर को बाय पावर सप्रेस किया गया हुआ था। ये सप्रेस आज से नहीं चल रहा है। आप देखें 1858 में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पहले हमारी ब्रेन पर कब्जा करना शुरू किया बाय मैकॉले एजुकेशन। फिर देश जिसका प्रोडक्ट आज हमारे सामने है, उनका टारगेट क्या था कि हमारे बच्चे बाहर से इंडियन लगे बट गाली इंडिया को दे, अपने माँ बाप गाली दे। और हमारी यूनिवर्सिटियों में ने जेएनयू में देख लिया। काली अंग्रेज। उसके बाद 1947 में देश आजाद हो गया तो एक नया ब्रेन पे अटैक हुआ इंडियंस की, वो कम्युनिस्टों ने किया विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस। और उन्होंने क्या अटैक किया? उन्होंने हमारा इतिहास झूठा सप्रेस भी किया, सच को दबाने का सिस्टम एक चालू किया और ये सिस्टम कांग्रेस चालू करके रखा इन्होंने। इसलिए हमारा समाज, हिंदू समाज से सच्चाई लगातार छुपाई गई। ईश्वर की कृपा से, नीति के कारण सत्य ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता। सोशल मीडिया जैसा एक सोर्स मिल गया। इस सोशल मीडिया ने हिंदुओं में एक चेतना पैदा कर दी। हिंदू जागने लगा, थोड़ी परसेंट में जागा, थोड़ी आजादी मिली और ये मूवी बनाने की हिम्मत आई सामने, जो एक डॉक्यूमेंट्री कहूंगा मैं। और इस डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया में जब सपोर्ट मिली, हिंदू समाज खड़ा हो गया जाके सिनेमा हॉल के सामने। मैं आपको आपके दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का ब्यौरा दे सकता हूं। शहरों में दिल्ली के आसपास ये मूवी नहीं लगी थी। लोग परेशान थे कि सिनेमा हॉल वाले इस मूवी को लगा ही नहीं रहे थे। मैं खुद दूसरे दिन ये मूवी दिल्ली जाके देख के आया और वहां पे कोई पोस्टर नहीं था। हमने लोगों ने इकट्ठे होकर वहां पोस्टर की डिमांड कर रहे थे हमसे कि पोस्टर क्यों नहीं लगा रहे आप। ये दुनिया का प्रेशर था। लोग बसों में भर भर के जा रहे थे देखने के लिए। थिएटर के बाहर लाइनें लग रही थी कि मूवी क्यों नहीं लगा रहे। इस प्रेशर के कारण इस मूवी को लगाना पड़ा और ये मूवी सच जो है ये अब सामने आ गया। ये और ये सच जो सामने आया, नरेंद्र भाई एक लाइन में बोलिए कि हिंदू क्या सीख सकता है आज? सबसे पहला, हिंदू को ये होप नहीं छोड़ना। होप, ये ये सच से पता लगा। हिंदू को ये पता लगा है कि ये हमें कोई सरकार, कोई पार्लियामेंट, कोई जज, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई ऑर्गेनाइजेशन इन स्पाइट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं बचा सकता। हिंदू को हिंदू बचा सकता है। हिंदू को खुद खड़े होना है, क्योंकि उस वक्त कोर्ट भी थी, उस वक्त पार्लियामेंट भी थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी थे, पार्टियां भी थी, सेना भी थी, पुलिस भी थी। हिंदुओं को कोई नहीं बचा पाया। उनका एक्सोडस हुआ, उनका जीनोसाइड हुआ। लेकिन इससे यही शिक्षा हिंदुओं को कि हिंदुओं को खुद खड़े होना है और इसको कभी भूलना नहीं है। जब तक एक भी कश्मीरी के मन में होप है कि हम कश्मीर में वापस जाएंगे, जैसा मूवी में कहा है, तो वो कभी सफल नहीं हो सकते उग्रवादी। ये होप हमारे में रहनी चाहिए। हिंदुओं को एकजुट होना है। हिंदुओं को होप कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पाए वो पंजाब हो और पाए वो कश्मीर हो, पाए केरला हो। एब्सोल्युटली, ये हिंदुओं के लिए सबक है। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं आपको एक क्लिप भेजूंगा इस डिबेट के बाद, आप उसको उसमें जरूर चलाना। आज मेरे पास एक क्लिप आया कि एक मुस्लिम औरत और उसका हस्बैंड इस मूवी को देख रहे थे। जब लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो उन्होंने बोला कि आप लोग ये जय श्री राम बोल रहे हो, इस तरह का होता ही रहेगा कश्मीर, इसको रोक ही नहीं सकते। जब सब हिंदू इकट्ठे होके उसके पीछे पड़ गए, जैसे नरेंद्र जी बोल रहे हैं, तो वो औरत और उसका हस्बैंड उस थिएटर से निकलते हुए गए। मेरे पास वो क्लिप है, आज ही मेरे पास अभी आया 1 घंटा पहले। मैं आपको वो क्लिप भी भेजूंगा, वो आप प्लीज उसको जरूर सुनाना। और दूसरी बात, इस मूवी को चलाने के लिए शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम, मैं आपको बता दूं, सेंसर बोर्ड ने, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम बैठे हुए हैं, उन्होंने इस पिक्चर को लगने से रोक दिया था।
लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मेहनत ने रंग लाया और अमित शाह जी से बात करने के बाद इस मूवी को 2 घंटे में ऑर्डर मिल गया रिलीज करने के लिए। मैं उस कश्मीर फाइल मूवी बनाने वाले को सल्यूट करता है सूरी, और सूरी उनके साथ खड़ा है। जो लोग भी इस तरह की मूवी बनाएंगे, चाहे वो कश्मीर फाइल पे हो या पंजाब फाइल पे हो या बंगाल फाइल पे हो, सूरी उनके साथ खड़ा है। एब्सोल्युटली। इसमें एक ही चीज मैं देख सकता हूं, अगर हिंदुओं मिलके एक मूवी को इतना बड़ा हिट बना सकते हैं, तो अगर हिंदू मिले तो हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है।